cyber awareness, cyber safety for the kids on the internet. So I'll be speaking a little bit, 4 or 5 minutes on that itself. And it is not only the kids who are kind widely affected by the cyber bullying or cyber crimes, but a lot of people of adult people also who gets affected by the cyber crimes. So initially, I would be highlighting what are the cyber hygiene practices that the kids, I can see a lot of students over here. What should you practice on the internet? And how can you keep yourself safe on the cyberspace? First of all, I know many people have already told about the social media platforms the children have been using. Instagram यूज करते हैं हम, स्नैपचैट यूज करते हैं बहुत लोग, फेसबुक यूज करते हैं, एक्स ट्विटर था, एक्स बोला जाता है उसको. एंड इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. बट these things have some negative side of it also. I'll give some example and then I'll quote what should you do on the internet with respect to these social media platforms or the apps that you're using. कुछ दिन पहले हमारे पास, I'll not reveal the exact details and all, हमारे पास कुछ दिन पहले कुछ कंप्लेंट्स आए थे जहाँ पे किसी बच्ची ने कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स अपने शेयर कर दिए थे किसी आदमी को इंटरनेट पे. एंड द पर्सन थॉट, द गर्ल चाइल्ड थॉट in the good interest she had developed some kind of affection for that person, and she believed that person and she shared the private photographs. Now what happens when you share a private photographs on social media, जब किसी से मिलते हैं हम, तो when you send that, it cannot be undone later on. Howsoever we try, we will try to find out the person who is behind that social media account who has been duping you, but there are a lot of limitations regarding that. जब हम कंप्लेन मिलता है हमारे पास तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे डिटेल मांगते हैं हम, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर देम टू गिव अस द डिटेल्स. सेकेंडली, nowadays people are using VPN and other kind of services which hide their identity on the internet. So even if we get the exact real IP the person has been using, we are unable to pinpoint the exact person who did that. This is one thing. It's difficult to catch the person also. Secondly, once you have sent the photographs, you do not know what kind of use that person is going to basically use that photograph for. There are a lot of private websites they can host the private photographs, and एक mental trauma होता है बच्चों का. So why did I tell this example to you? Because I wanted to tell that do not believe anyone on the internet. जब तक हम फिजिकली मिले ना हो, जब जानते नहीं हो, प्लीज डू नॉट बिलीव. इट ऑलवेज फील्स गुड कि यंग एज में, टीन एज में ऐसा होता है कि यू सी द पर्सन ऑन द इंटरनेट ऑफ अपोजिट जेंडर एंड यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद दैट पर्सन एंड यू फील इलेटेड, यू फील हैप्पी टॉकिंग टू द अपोजिट जेंडर, बट यू एग्जैक्टली डू नॉट नो द आइडेंटिटी बिहाइंड दैट जेंडर. तो वो क्या मिसयूज करेगा आपको पता नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द किड्स ओवर हियर. Please do not share anything. Photographs मैंने example दिया. Apart from that, your address, your complete name, your family details, your location, your schools, all these things do not share with anyone whom you do not know physically and personally. अब ये बोलने से मैं दूसरा वर्जन आ रहा था इस पे, what should do about privacy on the social media platforms or other platforms. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं. आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यू हैव द ऑप्शन टू हाइड योर डिटेल्स दैट यू हैव अपलोडेड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. पीपल डू नॉट नो दैट. आज ही जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज गो एंड अपडेट द सिक्योरिटी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन दैट दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू हैव बीन यूजिंग. नाउ हाउ डज इट हार्म समवन? आई एम अगेन गिविंग यू एन एग्जाम्पल से लोग ज्यादा बेटर समझ पाते हैं. I had been DCP cybercrime 2 years back in Kolkata, so that I have a much broader experience what kind of things goes on in cyberspace. I'll give you one example. Now that feature has been disabled from the platform, but what had happened earlier, I had this case. किसी ने फोटोग्राफ डाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि हम वेकेशन मना रहे हैं या कहीं जा रहे हैं. Now that person had been posting a lot of things. Earlier क्या होता था, फेसबुक पे कुछ या किसी प्लेटफॉर्म पे अपना फोटोग्राफ डालते थे, इट हैज अ जियो टैग इंफॉर्मेशन अटैच टू इट.
दैट मीन्स आप जहां फोटोग्राफ खींचते हैं, अभी भी आप देखिए फोटो खींचिए अपने मोबाइल फोन पे, यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फोटोग्राफ्स, you will see where was the photograph taken. You can see the lat long of the place where you took the photograph. Now, earlier social media platform never used to delete those metadata, that they are called metadata basically of photograph. They never used to delete that from the photograph when you upload. Now somebody can download it, and after seeing the metadata into that photograph, he can get an idea कि ये photograph कहाँ लिया गया है. ये एक टाइप ऑफ क्राइम होता था, और उसके बेसिस पे आपका इन्फॉर्मेशन सब निकालते थे लोग. बट अ पर्सन हैड बीन पोस्टिंग, वो वेकेशन पे गया हुआ है फैमिली के साथ, सब कुछ शेयर कर रहा है फोटोग्राफ, अपना फन टाइम फैमिली के साथ. द बैड एक्टर्स दे न्यू दिस पर्सन इज नॉट एट होम, एंड उसके घर में चोरी हो गई. दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू डू नॉट इवन नो कि आपके किस एक्टिविटी से आपको कैसे अफेक्ट करेगा, आप परेशानी में पड़ सकते हैं. नाउ हैड दैट पर्सन put his account in under stringent privacy policy that the Facebook offers to you, do not share my activity with the persons whom do not know, or maybe मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में जो नहीं है उनको शेयर नहीं करेंगे. मे बी द अदर पर्सन ओपन प्रोफाइल जिनका होता है वो नहीं देख पाएंगे आपका, एंड इस तरह की घटनाएं से बचेंगे. मे बी यंग बच्चे जो है यहाँ पे, दे हैव अ वेरी, मैं क्या बोलूँगा, एक स्टैटिक हो जाते हैं वो देख करके, उनके पास कितने फॉलोअर्स हैं, उनके पास कितने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, उनके फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक में या किसी और प्रोफाइल पे. वी ब्लाइंडली कीप ऑन एडिंग फ्रेंड्स इनटू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. व्हाई टू टेल यू, आई ब्लेम माई सेल्फ ऑल्सो. जब हमने पढ़ाई की कॉलेज में, उसमें फेसबुक जब चालू हुआ था, आई ऑल्सो यूज टू फील वेरी रिलेटेड seeing a lot of friends requests, and I used to add everybody as my friend, and I used to boast मेरे पास 5,000 friends हैं Facebook पे. And when I got into the service and then I got to know about all these things, you will not believe I do not have more than 300 or 400 friends on my social media platform. I unfriended them all. Please do this thing. People who you do not know, please not make them your friend. Again, why I am telling this thing to you? I'll again quote an example. Many people might have seen these kind of thing, crime, कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको मैसेज किया, यार तुमको पैसे की कोई जरूरत है या कोई ट्रेजेडी हो गया तुम्हारे साथ, बिकॉज somebody contacted me on your behalf कि इनको समस्या हो गया है, प्लीज पैसा दीजिए. Many people might have definitely heard about it. In my friend circle, I have seen. How does it again happen? Because if you have met somebody, a friend whom you do not know, he can actually see your friend list also. सोचिए कितना बड़ा implication है प्राइवेसी का सेटिंग से. Now that person, if he has a bad intention, what he will do, he will scan through all your friend list, and अगर आपके पास 2000 फ्रेंड है, उस 2000 में सबको मैसेज करेगा, यार मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, आपका प्रोफाइल को impersonate करके. And how will he impersonate your profile? Because since he is your friend or she is your friend, he has all the information on your photographs, your education profile, everything. He'll create a fake profile of Facebook and then he'll message that person because he knew कि he is your friend, because आपने उनको फ्रेंड लिस्ट में डाल लिया था अपने, उनको मैसेज करेगा, and you will believe, your friend will believe हाँ genuine requirement है, and they'll transfer some money or whatever favor he's asking for, he'll go for that. So I just give this example to make you understand that what significance does this privacy security on the social media platform have with respect to your safety and security. तो आज मैं बोलूंगा सबसे पहले आप लोग जो बच्चे यहाँ पे, and even the adults sitting over here, please go ahead and check your privacy setting. If you do not know, there are a lot of tutorial on the YouTube, lot of videos available everywhere. Please do that. तो प्राइवेसी की बात मैंने बोल दी. नेक्स्ट, अननोन लोगों से बात नहीं करना, ये बोल दिया मैंने बच्चों के लिए. नंबर 3 जो मैं बोलना चाह रहा था आपको कि हम आजकल हम लोग साइबर फ्रॉड में एक नया एंगल देख रहे हैं, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड इन साइबर क्राइम. बहुत सारे बच्चे यहाँ एडोलेसेंट हैं, टीनेज हैं, एंड यू डेफिनेटली मस्ट बी यूजिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. आजकल यूपीआई आ गया है, दैट हैज मेड आवर लाइफ वेरी वेरी इजी. ट्रांजैक्शन इतना आसान हो गया है, but that has made the criminals also very happy, because transfer of money is quite easy using UPI.
Now what, how does it happen? नॉर्मली यूपीआई क्राइम या फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं, मैं इस बारे में इसलिए बोलना चाह रहा हूं आपको, और एक ही दो पॉइंटर्स में बोलूंगा जिसे सीख सकते हैं. बिकॉज एवरी डे द साइबर क्रिमिनल्स दे इनोवेट द मेथड्स टू डीप यू आउट ऑफ मनी, हार्ड अर्न मनी. और हमेशा हम लोग इस झांसे में पढ़ के कि अदर साइड पे जो फोन कर रहा है हमको या कुछ बोल रहा है हमसे, कुछ डिमांड जो कर रहा है, मे बी ही इज अ जेन्युइन पर्सन एंड वी शेयर एवरी डिटेल एंड वी ट्रांसफर सम फंड्स आल्सो एंड लेटर ऑन वी गो टू पुलिस. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, पुलिस के पास जाने के बाद भी अगर यूपीआई अकाउंट पैसे इतने तेजी से ट्रांसफर होते हैं अकाउंट टू अकाउंट लेयरिंग होते हुए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक वेयर द अकाउंट एक्चुअली बिलोंग्स एंड किसके पास अकाउंट होता है. अगेन आई विल टेल यू वन मोर ट्रेंड ओवर देयर. अब ये अकाउंट जो बनते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं अकाउंट टू अकाउंट, वो अकाउंट भी फेक होते हैं. मैं खासकर आप लोगों को बोलूंगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कई बार हर आदमी के मोहल्ले में होते हैं, कुछ लोग होंगे बोलेंगे आप मेरे को अकाउंट, अपना नाम का अकाउंट खोल के दीजिए, 10 अकाउंट, आई गिव यू 5,000 रुपये पर अकाउंट. एंड वी हैव जस्ट क्रैक्ड द केस इन फांसीदेवा रिसेंटली, जस्ट 10 days back itself. That person had more than 500 accounts with him and he had been visiting the villages. वहां पे गांव के लोग 5,000 रुपए के लिए कुछ भी कर देंगे. I mean, क्या देना है, अपना डिटेल तो शेयर करना है उनको, एंड उसे अकाउंट खुल रहा है. नाउ दोज अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस. जब पैसा उसमें जाएगा, आफ्टर ऑल पहले पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है इमीडिएटली, लेकिन पता लग भी गया 1-2 महीने में, पता लगेगा कि गलत आदमी के पास पहुंच गए हम पुलिस. तो बाद में कुछ एक्ट करे पुलिस, उससे बेटर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू मस्ट डू सो दैट यू डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप. इसके लिए मैंने हमेशा एक जगह, मैं पहले ही बोल चुका हूं, एंड आई हैव टोल्ड दैट देयर आर 2 things दैट ऑपरेट एंड थ्रू दैट दे डीप योर मनी. दैट इज, वन इज फियर एंड दैट इज द सेकंड वन इज ग्रीड. जब भी आपसे कुछ पैसा मांगा जाएगा या कुछ एक्टिविटी करने बोला जाता है यूपीआई प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, आपको या तो डर में रखा जाएगा या आपको लालच दिया जाएगा. मेनी पीपल हैव मस्ट सीन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैं दे रहा हूं एग्जांपल. इलेक्ट्रिसिटी का आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा. हाउ मेनी पीपल गॉट द मैसेज? आप किसी को पता है, यहाँ पे किसी को आया, हाथ उठा के दिखाइए कोई किसी को, आपका मैसेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा. एंड दे आर बेसिकली पुटिंग यू इन फियर कि अगर आज आप जमा नहीं करेंगे बिल आपका तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा. नाउ वो रैंडमली डेटा कहीं से खरीदते हैं एंड मैसेज करते हैं आपको. अगर उनको 1 लाख लोगों को मैसेज किया, 1 लाख में अगर मान लीजिए उनके पास 1,000 लोग कन्वर्ट हो गए, सी द रिवॉर्ड दे आर हैविंग. अब बचना कैसे है? जब फियर में डाल रहे हैं, ऐसा फियर कुछ नहीं होता है कि आपके जान का उस पर सवाल आ रहा है. क्या होगा, एक रात बिजली कट जाएगी हमारी, कटना चाहिए तो होगा. अगर बोला जा रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपने अगर मेरे को ये ट्रांसफर नहीं किया पैसा, क्या होगा, एटमैक्स क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन अगले दिन जाके बैंक में जाएंगे, अगले दिन या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस चले जाएंगे, हम वहां जाकर के पूछेंगे क्या स्थिति है. अगर जेन्युइन होगा तो ठीक कर देंगे हमारा वो, अदरवाइज फिर तुम साइबर क्रिमिनल के उसमें पड़ जाएंगे. नंबर 2 होता है ग्रीड. ग्रीड में क्या है, दे विल ऑलवेज कॉल यू एंड ऑफर यू समथिंग. सर अगर आप इतना पैसा ट्रांजैक्ट करेंगे तो आपको इसमें इतना बोनस पॉइंट मिलेगा, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. यू फॉल इनटू दैट ट्रैप. अच्छा, इस एक्टिविटी के लिए पहले आप 5,000 रुपये जमा कर दिए, देन आपको एक और पॉइंट मिलेगा. ऐसे कुछ कुछ चीजें करते हैं. यू मस्ट हैव सीन एंड हर्ड अबाउट इट. यू कीप ऑन सेंडिंग मनी, लेटर ऑन यू गेट टू नो दैट यू आर ड्यूप्ड. तो मेरा ये कहना है, किसी भी आदमी से इंटरेक्शन जब आप कर रहे हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड. इफ दे आर पुटिंग यू इन एनी काइंड ऑफ फियर और एनी ग्रीड, डू नॉट गो अहेड विद एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर. अगर सिंपल ये काम कर देंगे, यू विल नेवर एवर फॉल विक्टिम ऑफ अ साइबर फ्रॉड. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय पेरेंट्स. एटलीस्ट थैंकफुली मैं उनको गाइड कर देता हूं जब फोन करते हैं, बट अब मुझे उनको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो ओल्ड एज पीपल, 60-62 इतना ही उनका भी एज है. नाउ आई हैव टोल्ड दिस थिंग टू देम. पापा, आपको जब भी कोई बोले, आपको डर पैदा करे या कोई लालच दे ये मिलेगा, प्लीज डू नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन. कुछ होगा, लेट मी नो, आई विल हैंडल द सिचुएशन. एंड यू विल नॉट बिलीव, थैंकफुली टचवुड, आज तक उनको कभी कॉल्स आए हैं उनके पास ऐसे, बट दे हैव नेवर फॉलन विक्टिम टू इट. एंड शाम में फिर बोलेंगे मेरे कॉल के बेटा ऐसे कॉल आया था, हमने कॉल काट दिया. दिस काइंड ऑफ स्मार्टनेस दे हैव डेवलप्ड, एंड दिस इज ओनली थ्रू वन थिंग, दैट इज दिस फियर एंड ग्रीड का जो साइकोलॉजिकल इशू है. प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप.
फियर एंड ग्रीड को 10 मन से निकाल दीजिए, यू विल नेवर फॉल विक्टिम टू दीज काइंड ऑफ क्राइम्स। एंड जब भी कोई आदमी बात करे आपसे, अगर मान लीजिए लग भी रहा है एक लेवल तक जेन्युइन, प्लीज डू नॉट शेयर योर डिटेल्स टू दैट पर्सन। आपको बहुत तरीके से लगेगा कि आदमी जेन्युइन है, हो सकता है आईवीआरएस कॉल से कॉल आएगा, आईवीआरएस कॉल तो शायद फ्रॉड यूज ही नहीं कर सकता है, बट यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन दे आर डूइंग। तो यही बोलना था साइबर फ्रॉड को लेकर मेरा। एंड इसके ज्यादा और मेरा कुछ बोलना नहीं है, बस यही बोलेंगे कि अब वेबसाइट जो विजिट करते हैं, एक लास्ट चीज, वेबसाइट जो विजिट करते हैं हम लोग, प्लीज ऑल्सो बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वेबसाइट्स पे आजकल बहुत सारे वायरस मैलवेयर पीछे अटैच होते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, डाउनलोड करके हम देखते हैं, दैट माइट ऑल्सो कंप्रोमाइज आवर सिस्टम एंड यू डू नॉट नो कि आपका कैसा हार्म पहुंचा पाएगा। हम लोग जब भी, मैं साइबर फ्रॉड को डू नॉट टेक इट इन अ बिग वेरी बिग थिंग, ऐसा कुछ हो रहा है, सिंपल ट्रेडिशनल क्राइम मानिए, आपके घर में कोई एक आदमी आता है, घुसना चाहता है, डू यू अलाउ हिम टू एंटर इनटू योर हाउस? टेल मी, यू नेवर डू दैट। बाहर से बात करेंगे, ठीक है, कुछ पूछता है, कुछ बताते नहीं हम। सेम थिंग, इमेजिन द साइबर स्पेस टू बी अ बिगर हाउस and do not let that person come near you. If that person comes near you, ask hundreds of questions. इतना ही करना है बस। हमारे पास इंट्रूजन को ना कर पाए, इतना करने से you will never ever fall victim to cyber crime. अगर, और खासकर बच्चों को मैं बोलूंगा कि जो मैंने बताया था फोटोग्राफ शेयर करने का, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा उसको। I have seen very very bad things happening by sharing these photographs and all those things. We can mend the things, but there are a lot of things in this circulation that cannot be unmended. So please be very very responsible on the internet, and I'm hopeful that दार्जिलिंग बच्चे जो हैं यहाँ पे and बाकी जो बड़े लोग हैं, प्रैक्टिस करेंगे साइबर हाइजीन का क्या करना चाहिए। So with that I conclude my speech. Thank you. आबुधाबीको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। PSBD, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 40 वर्षसम्म, स्यालेरी 26 दिनको निम्ति 59,400, 30 दिनको निम्ति 67,400, फ्री एकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्टको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 3 जुलाई 2024 बुधबारको दिन, फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी, नियर इस्कन मन्दिर, सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।